good morning to all my dear students. Sorry, it's good afternoon now. Hello and good afternoon to everyone. So, welcome in the class of economics. We were on chapter number 2 of micro, right? We have discussed till yet the law of DMU. In our yesterday's class, we have discussed the most important topic of micro and the most interesting, which is related to all of you. The topic was law of DMU. हमने बात की थी law of DMU की that even if we consume our favorite commodity again and again continuously, then the additional satisfaction derived from that commodity will initially decrease, then it may become zero and then our satisfaction may also become negative. Right? कल हमने काजू कतली पे स्टडी की थी, करण गुप्ता की फेवरेट मिठाई. चलिए आज इस लॉ के assumptions पढ़ते हैं. Have a look everyone. Whenever we are talking about any law of economics, we have to firstly write the statement of law. ध्यान रखना स्टेटमेंट होता है, मीनिंग नहीं होता है, ठीक है. तो लॉ ऑफ डीएमयू की स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, the additional satisfaction derived from every successive unit goes on declining. After the statement, you have to write down the assumptions of law. हर लॉ की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मैं आपको सिंपल सी 3 या 4 कंडीशंस बताती हूँ लॉ ऑफ डीएमयू की. नंबर 1, the consumption must be continuous. If I am giving you 2 pieces of kaju katli right now and I will be giving you 2 pieces in the evening, then definitely the satisfaction level may be same or it may be different. It may not fall, right? If I am giving you 1 chocolate today and 1 tomorrow, then also this law will not be applicable. Number 2, standard unit must be consumed. रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए. अगर मैंने कतली का एक छोटा सा पीस आपको दिया और उसके बाद पूरी कतली दे दी, तो डेफिनेटली द सेकंड कंडीशन विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन, राइट. इफ आई टॉक अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर, आप घर पे आए हैं बाहर से स्कूल से टायर्ड होके, यू आर आस्किंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई हैव गिवन यू 1 spoon of water, definitely the glass will give you more satisfaction. But if I have given you 1 glass and then the second glass will give you less satisfaction. Okay, number 3, I am not talking about the sequence of book. अभी तो मैं आपको जनरल बातें बता रही हूँ, है ना. नंबर 3, the goods must be of same quality. अगर पहली वाली कतली थोड़ी सी कम अच्छी थी और दूसरी वाली क्वालिटी वाइज उससे ज्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली द सेकंड वन विल ऑफर यू मोर सेटिस्फैक्शन. तो लॉ के एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है कि क्वालिटी सेम. अब बुक वाइज पढ़ते हैं. Number 1, this law is applicable only when the consumer is able to measure the utility in numerical terms. It means when we are discussing the cardinal utility approach, then only we can discuss this law. Number 2, monetary measurement of utility. We are assuming that we can measure the satisfaction in monetary terms also. Number 3, consumption of reasonable quantity. डेयरी मिल्क का एक छोटा सा पीस दे दिया चॉकलेट का और फिर पूरी डेयरी मिल्क दी, या तरसा के खिलाते हैं ना छोटे बच्चों के साथ, हम जनरली करते हैं. ये डेयरी मिल्क है, पूरी ओपन कर ली और थोड़ी सी आपको दे दी और बाकी वाली मेरे ही हाथ में, तो डेफिनेटली आपको मेरे हाथ वाली ज्यादा अच्छी लगेगी. तो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, अदरवाइज दिस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल. नेक्स्ट, कंटीन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए. एक यूनिट अभी दिए तो नेक्स्ट यूनिट भी अभी दो. अगर कंटिन्यूअसली होगा देन ओनली दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट, नो चेंज इन क्वालिटी. क्वालिटी सेम होनी चाहिए, है ना. जितने भी गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है क्वालिटी सेम होगी, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस लॉ, अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल टू अप्लाई द लॉ. नेक्स्ट, rational consumer. Rational word here means the person who is having proper mental state to make a decision. एक ऐसा कंज्यूमर जो समझदार है, जो यूटिलिटीज को मेजर कर सकता है अपने टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज. वी कैन गिव इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज टू different units. Unit 1, Unit 2, Unit 3 can be given utilities independently, and the person is free to give utilities according to his power. Now, marginal utility of money will remain constant. Means the satisfaction which money is giving us in terms of util, we need to measure this also. What? We need to measure the satisfaction which money is offering us in terms of utils. उसको भी हमें constant लेना है, ठीक है. हम जनरली जब अपनी स्टडी करेंगे तो हम एमयू को इग्नोर ही कर देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात ही नहीं करेंगे.
आगे fixed income and prices, the income and prices of consumer will remain fixed and the consumer must have perfect knowledge about the various goods available in the market. अब कौन कौन से पॉइंट्स लिखने कंपल्सरी है? नंबर 9, नंबर 8, नंबर 6, 5, 4, 3 and 1. I am repeating number 1, number 3, number 4, number 5, number 6, number 8 and number 9. ये पॉइंट्स लिखने कंपल्सरी है. Without these points your assumption will be treated as incomplete. Now yesterday I have given you the homework to go through the diagram and to go through the table. I hope you all must have gone through this part and you all must highlight this thing also, that the point where MU is 0 is known as point of satiety. It is the point where total satisfaction of a consumer is maximum. Right, the point where a consumer is getting maximum satisfaction from the consumption of given commodity. So we have completed this part. Now we have to move towards the next topic, that is consumer equilibrium. Have a look at it. What is consumer equilibrium? Start with it. The term equilibrium is frequently used in economic analysis. Equilibrium means state of rest or position of no change. इक्विलिब्रियम हम उस पोजीशन को कहते हैं जहां पे हमें लगता है दैट नाउ वी कैन रेस्ट, नाउ वी आर एट अ गुड पोजीशन. अगर आप मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो जहां रुक के आपकी ड्रेस फाइनलाइज कर ली, फाइनलाइज जब कर रहे हो दैट यस वी आर गोइंग टू परचेज दिस वन, दैट पॉइंट विल बी ट्रीटेड एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. जब तक पसंद नहीं आई और हम अलग अलग शॉप टू शॉप घूम रहे हैं, तब तक हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा. और जैसे ही पसंद आ गई और हम फाइनलाइज कर चुके हैं, then that point will be treated as the point of consumer equilibrium. ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बातें ये कह रहे हैं आपके लिए. It refers to a position of rest which provides maximum benefit or gain under a given situation. It is that point where you find maximum benefit. आपको लग रहा है given situation में this is the best thing I can get. ठीक है, वहीं तो जाके आप रुकते हैं. जैसे जब कोई कमोडिटी परचेज कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है गिवन प्राइस में दिस इज समथिंग बेस्ट व्हिच आई कैन गेट, तो वहीं जाके मैं स्टॉप हो जाऊंगी. अब देखिए क्या कहते हैं. Consumer's equilibrium refers to a situation where a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. Consumer equilibrium क्या है? वो पॉइंट है जहां कंज्यूमर को लगता है कि गिवन इनकम के साथ उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव हो गया है, यानी विद द गिवन इनकम ही इज एबल टू अर्न मैक्सिमम. और अब उसको अपने क्या मैक्सिमम पैसा नहीं, सेटिस्फैक्शन, और अब उसको अपने गिवन एक्सपेंडिचर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं. इसी पॉइंट को कहते हैं द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब क्या कह रहे हैं? The consumer has to pay a price for each unit of commodity, so he cannot buy or consume unlimited quantity. As per the law of DMU, utility derived from each successive unit goes on decreasing. At the same time, his income also decreases with purchase of more and more units of commodity. ये कह रहे हैं कंज्यूमर जब कोई भी कमोडिटी परचेज करेगा तो उसको प्राइस पे करना पड़ेगा, है ना. उसको क्या करना पड़ेगा? उस कमोडिटी के लिए कुछ ना कुछ मनी पे करना पड़ेगा. तो वो अनलिमिटेड तो परचेज कर नहीं सकता. He will be able to buy only a limited quantity of any commodity. And also we know that when a consumer is purchasing more and more units, the additional satisfaction also decreases. ये हमने law of DMU में पढ़ा है. तो वो कितना परचेज करे. एक प्रॉब्लम और भी तो है, जब मैं मोर एंड मोर कंजप्शन कर रही हूँ तो मेरे हाथ में जो इनकम बची है, मेरे पास जो पैसा बचा है, वो भी तो डिक्रीज होता जा रहा है. तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में, राइट. तो देखिए क्या कहते हैं. A rational consumer aims to balance his expenditure in such a manner that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure. एक समझदार कंज्यूमर हमेशा ये करना चाहेगा, अपने मिनिमम पैसा खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहेगा. When he does so, he is said to be in equilibrium. जब वो कर पाता है ऐसा, तो हम कहते हैं that he is in the position of equilibrium. आगे देखिए.
After reaching the point of equilibrium, there is no further incentive to make any change in the quantity of the commodity purchased. It means once if the consumer has reached the point of equilibrium, then he don't want to change the level of consumption. अगर एक बार आप शॉप पे गए और आपको ड्रेस पसंद आ गई तो डेफिनेटली आप और ड्रेसेस देखना प्रेफर नहीं करेंगे. कब तक देखेंगे? जब तक हमें पसंद नहीं आती है. Once we have finalized the dress that yes, this is the one which I want to buy, then I will stop seeing more dresses, right? So that will be the point of satisfaction. That will be the point of equilibrium. Raise your hands अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप मार्केट गए और एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया. आता है क्या? क्या कंपेयर करते हैं? प्राइस एंड सेटिस्फेक्शन. ड्रेस हम पे कितनी सूट हो रही है और कितने रुपीस की. काफी बार ऐसा होता है कि सेटिस्फेक्शन तो होता है बट हमें लगता है ये वर्थ नहीं है. हमें कोई ड्रेस पसंद आई, हमने देखी, we have decided that yes I want to buy this dress, but मम्मी ने प्राइस टैग देखा और कहा 3000 की ड्रेस है. नो 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 बेटा, इट इज नॉट वर्थ. और वो हमें नहीं दिला के लाते. हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आता, हमें और घूमना पड़ता है और ड्रेसेस देखनी पड़ती है. ऐसा किस किस के साथ होता है बताइए? रेज योर हैंड्स. बहुत बार होता है, हम सभी के साथ होता है, राइट? कि हम देखते हैं, फिर हमें काफी बार लगता है प्राइस टैग देख के कि ये हमें सेटिस्फेक्शन तो दे रही है बट मॉनेटरी वैल्यू जितनी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है उसके इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं, तो हम उसको परचेज करने का डिसीजन साइड कर देते हैं, राइट? नाउ हैव equilibrium can be discussed in two conditions, two different situations. हमें दो बार पढ़ना है. Number one, when the consumer spends his entire income on a single commodity. फर्स्ट कंडीशन जब कंज्यूमर सारे पैसे एक ही कमोडिटी पे लगा रहा है. दूसरी सिचुएशन जब कंज्यूमर के पास टू कमोडिटीज है. मेक श्योर ये दोनों इमेजिनरी सिचुएशंस है. रियल लाइफ में वी आर परचेजिंग मेनी कमोडिटीज, राइट? तो रियल लाइफ में ये दोनों ही सिचुएशंस नहीं होंगी, हमें थ्योरेटिकली इनको समझना है. नंबर वन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. अब सिंगल कमोडिटी है, लॉ ऑफ डीएमयू हमने पढ़ाई है कि अगर वो एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती जाएगी, है ना? अब कंज्यूमर कितनी यूनिट्स लेगा जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. नाउ दिस सेटिस्फेक्शन एंड इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. व्हाट आर दीस थिंग्स? Number one, price of given commodity, and number two, marginal utility of the commodity. Marginal utility means additional satisfaction. I will continue to buy the product up to the stage where I am getting the satisfaction equal to the monetary sacrifice. वहां तक तो परचेज करूंगी, उसके बाद में परचेज नहीं करूंगी. तो देखिए क्या करें. Being a rational consumer, he will be at equilibrium when marginal utility is equal to price paid for the commodity. Important part है, ध्यान से सुनिए. जब मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतनी ही मैं प्राइस पे कर रही हूँ, तब तक कंज्यूम करूँगी. अगर मुझे लग रहा है सेटिस्फेक्शन इज मोर देन प्राइस तो मैं उस कमोडिटी को परचेज करती रहूंगी. जहां मुझे लगेगा सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू प्राइस वहीं तक परचेज करूंगी, क्योंकि उसके बाद प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी बट मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज होता रहता है व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, राइट? तो देखिए क्या है, ये हाईलाइट कर लेना जो मैंने हाईलाइट किया है. We know that marginal utility is expressed in utils and price is expressed in terms of money. Marginal utility util में है और price monetary terms में है. However, marginal utility and price can be effectively compared only when both are stated in same units. Therefore, marginal utility in utils is expressed in terms of money. तो देखिए मनी के टर्म्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू MUX अपॉन MUM. आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं है, हम तो स्टडी को इजी रखने के लिए MUM को 1 अज्यूम कर लेंगे और 1 हम ये मानेंगे कि 1 रुपी 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो जितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मॉनेटरी टर्म्स में ही हो गया. ये देखिए क्या लिखा है, MU of 1 rupee is the extra utility obtained when 1 rupee is spent on other goods. As utility is subjective, it differs from person to person.
It is assumed that consumer himself defines MU of 1 rupee in terms of satisfaction from bundle of goods. हम तो अपनी पूरी स्टडी में ये मानेंगे कि MUM 1 है, उसको 1 लेके ही हमें कंपेयर करना है अपने पूरे सेटिस्फेक्शन को। एक बार देखिए बहुत ध्यान से सभी बच्चे, yes, have a look at it. अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं आपके पास सामने, ये आपको ऊपर लिख के दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी दैट मींस MU ऑफ अ कमोडिटी। किसकी? मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ गुड एक्स। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरी सारी स्टडी किसकी है? गुड एक्स की। अगर बेटा मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MU, और ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं आपके लिए M, और मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ दैट 1 रुपी इज गिविंग मी सेटिस्फेक्शन ऑफ 1 यूटिल, तो MUX तो हर बार सेम ही आएगा जो आपने अपनी टेबल में लिया है। तो स्टडी को इजी रखने के लिए आपको MUX को MUM को इग्नोर करना है, क्योंकि हम मान रहे हैं दैट 1 रुपी इज गिविंग मी सेटिस्फेक्शन ऑफ 1 यूटिल। अब मुझे MUX को कंपेयर करना है प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। किससे कंपेयर करना है? प्राइस ऑफ गुड एक्स से। जहां मेरा MUX और PX इक्वल आएगा वही मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। आप देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है MUX, ये देखिए, consumer and consumption of single commodity will be in equilibrium band. Marginal utility of good X is equals to price paid for good X. Now you must keep it in your mind that marginal utility of good X is decreasing. आप जब इसको लेंगे तो ये डिक्रीज होती रहेगी, और प्राइस ऑफ गुड एक्स जब आप लेंगे तो प्राइस कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। प्राइस को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, ठीक है? प्राइस चेंज नहीं होगी, ये हमने अजम्पशन में ध्यान रखना है। आगे देखिए, नाउ इफ MUX is more than PX, MUX means satisfaction, PX means sacrifice, then consumer is not at equilibrium, he goes on buying because benefit is greater than cost. ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, that if marginal utility of money, marginal utility of commodity is more than price, then you will buy more of the commodity. क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, सेक्रीफाइस कम हो रहा है, he will buy more and more. जैसे जैसे वो ज्यादा खरीदेगा वैसे वैसे क्या होगा? MU फॉल होता जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगा, क्योंकि लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल। अब जब फॉल होगा तो फॉल होते होते मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल भी आएगा, जब इक्वल आएगा तो कंज्यूमर वहीं रुक जाएगा। अभी मैं आपको टेबल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये सेम कंसेप्ट। आगे देखिए, सिमिलरली अगर MUX कम है और प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वो कम करेगा कंजप्शन, कम करता रहेगा। कब तक कम करता रहेगा? जब तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं आ जाता। ये टेबल देखिए, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यूनिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। PX हमें खुद अज्यूम करना है और कांस्टेंट रखना है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कांस्टेंट रहेगी पूरी स्टडी के टाइम पे। सिंपलिसिटी के लिए हमने अज्यूम कर लिया दैट 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी, तो MUM 1 है, इसका मतलब हमें MUM को इग्नोर करते हुए चलना है, हमें MUX को PX से कंपेयर करना है सिर्फ। नाउ हैव अ लुक, क्या आप सभी को MUX का बिहेवियर पता है? ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये टेबल उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग है जो हमने कल पढ़ा था? सभी बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व करें इसको। Is it according to that only? MUX initially decreasing, then it becomes 0 and then it becomes negative. Now what we have to do? Compare the satisfaction from sacrifice. Price is sacrifice, MUX is satisfaction. Now 20 is equals to, ये 20 डिवाइड बाय 1 मैंने क्यों किया? मैंने मनी के टर्म्स में यूटिलिटी देख ली, सेम ही आ रही है क्योंकि मैंने MUM को 1 अज्यूम कर रखा है। अब यहाँ देखिए, in these two situations my satisfaction is more than my sacrifice,
I am sacrificing 10 rupees, but I am getting a satisfaction of 20 rupees. So I will consume more of this commodity. Again, on consuming second unit, I am getting 16 utils as satisfaction, whereas my sacrifice is only 10. तो मैं और consume करूँगी. जब मैं third पे आई तो you can clearly observe that I am getting a satisfaction of 10 util and my sacrifice is also 10. तो यहाँ आके मैं रुक जाऊंगी क्योंकि यहाँ डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जीरो. MUX is equals to PX, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अगर अभी भी कोई कंज्यूमर आगे मूव करता है इस पॉइंट के बाद, तो आप देखिए 10 रुपीज का सेक्रीफाइस करके उसको केवल और केवल 4 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो आगे मूव करना प्रेफर नहीं करेगा. क्यों प्रेफर नहीं करेगा? बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज लेस देन द सेक्रीफाइस नीड. तो ये जो पॉइंट है जहाँ सेटिस्फेक्शन और सेक्रीफाइस इक्वल है, we will call this point as the point of consumer equilibrium, the point of maximum satisfaction of consumer. यहाँ आके कंज्यूमर हमेशा रुक जाना चाहता है, स्टॉप हो जाना चाहता है. Now have a look everyone. Just give me a second.